Okay, so hello and welcome everyone. In this lecture, we are going to discuss data structure of hash map. We will discuss what hash map is. So, what's hash map? Hash map is basically a data structure only. It's another type of data structures which is used to store some values. Okay, or in general, it is used to store key value pairs. It is used to store key value pairs, and based on keys, we retrieve our values. How this hash map works, we will discuss in detail later. So the general definition of hash map is it is used to store key value pairs. Okay, and there are a lot of each and every language has its own implementation of hash map. Java has hash map data structure from the name of hash map itself inside our collections framework. Python has dictionaries and so on and so forth. Now so what thing is completed? What is hash map? Hash map is just another data structures which is generally used for the purpose of storing key value pairs. Okay, now second thing that we will discuss in this video is how to create a hash map. Third thing that we will discuss is when to use a hash map, and fourth what we are going to discuss is the application based questions based on hash map only. Okay, so coming to how to create a hash map. Inside this, the first thing that we need to understand what are the components of hash map. कि hash map के related कौन कौन से components है. तो hash map के अंदर दो components आते हैं, further अपन और details में पढ़ेंगे. hash map के majorly दो components है. पहला component है आपका hash table. पहला component है hash table, and the second component that we have is our hash function. Okay, बस इसके दो ही major component है, and these two components make our complete data structure called as hash map. We will discuss ये दोनों components कैसे काम आते हैं और क्या करते हैं. And then later on this video we are also going to do the implementation. Implementation भी दो तरीके से होगा. First a normal implementation जिसमें अपन corner cases या collisions handle नहीं करेंगे, and second one जिसमें अपन collisions को handle करेंगे. Okay, again we will discuss. So इसमें अपन बहुत simple hash map implementation करेंगे और second video में अपन थोड़ा सा collision handling and what collision is ये भी मैं आगे जाके बताऊंगा. And then later on we will discuss some of the drawbacks of hash map. Okay, so now first things comes is components you need to understand of hash map. तो hash map के as I said दो components होते हैं. पहला component होता है hash table और दूसरा component होता है hash function. hash table का रोल क्या है? hash table is actually used to store all the elements. अगर आपको एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, एलिमेंट्स को स्टोर करना है, तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे, चाहे एरे में स्टोर करो, चाहे नोड में स्टोर करो, किसी ना किसी फॉर्मेट में स्टोर करोगे. तो हैश मैप में वो काम एक्चुअली एलिमेंट स्टोर करने का काम कौन करता है? हैश टेबल करता है. हैश टेबल के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है. यू कैन थिंक ऑफ हैश टेबल एज जस्ट एज एन एरे. You can create an array and call that array by the name of hash table. It will work. Hash table is something you can consider just any type of storage. Okay. Now hash function. Hash function का क्या काम करता है? Hash function यहाँ पर क्या काम करता है? Hash function inside hash map has the role of generating arbitrary address slash indexes. बेसिकली हैश फंक्शन का रोल क्या होता है कि ये मेरे को इंडेक्स या लोकेशन जनरेट करके देता है. जिस भी लोकेशन के बेस पर मुझे की को उसको स्टोर करना होगा, किसी भी की को मुझे स्टोर करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, उस की को हैश फंक्शन में पास करूँगा. हैश फंक्शन मुझे उसका इंडेक्स जनरेट करके देगा, और जो भी इंडेक्स मुझे हैश फंक्शन जनरेट करके देगा उस इंडेक्स पर जाके मैं उस की को स्टोर कर दूंगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड बाय दिस. मान लो तुम्हें एक हैश टेबल दे रखी है ऑफ साइज 12. यू कैन अज्यूम दिस हैश टेबल जस्ट एज एन एरे, एज ए एरे की तरह. तो आपको सारे इंडेक्सेस दे रखे हैं 0 से लेके 11 तक. एक हैश टेबल है जिसकी साइज क्या है? 12. नाउ सपोज आई वांट टू स्टोर सम वैल्यू इनसाइड दिस. लेट्स से आई वांट टू स्टोर वैल्यू 14. मेरे को एक वैल्यू स्टोर करनी है 14 हैश टेबल के अंदर. तो जनरल एरेज के अपन अंदर क्या करते हैं कि जो भी फर्स्ट वैल्यू आएगी उसको 0th इंडेक्स पे, सेकंड को फर्स्ट इंडेक्स पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ अपन फिल करते जाते हैं. बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स ऑन हैश मैप. मेरे को जो भी वैल्यू स्टोर करनी है मैं उसको कहाँ पास कर दूंगा? हैश फंक्शन के अंदर. हैश फंक्शन के अंदर मेरे को 14 पास करूंगा, और हैश फंक्शन मुझे रिटर्न में क्या देगा? एक इंडेक्स देगा, और उस इंडेक्स पर जाके मैं इस वैल्यू को स्टोर कर दूंगा. अब हैश फंक्शन कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एनी आर्बिट्रेरी इंडेक्स जनरेटिंग फंक्शन. लेट्स से मैंने एक हैश फंक्शन बना रखा है, हैश फंक्शन, जिसमें यूज़र मुझे क्या पास करेगा? एक की पास करेगा. ओके, और जो भी यूज़र ने मुझे की पास करी है मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? की रिमाइंडर बाय टेबल साइज. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लॉजिक बिहाइंड हैश फंक्शन. बहुत सिंपल और बहुत फेमस हैश फंक्शन है. कहीं पर भी ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो दिस इज द फर्स्ट हैश फंक्शन दैट यू विल गेट. ओके, सो व्हाट डज इट मीन्स? मान लो मुझे वैल्यू स्टोर करनी है 14. तो मैंने क्या किया? हैश फंक्शन कॉल किया और मैंने की क्या पास कर दी? 14. तो यहाँ पर की वैल्यू तो क्या हो गई? 14. और टेबल साइज क्या है मेरा? देखो टेबल का साइज क्या है? टेबल का साइज इज 12. सो 14 रिमाइंडर बाय 12. तो अगर मैं 14 को 12 से डिवाइड करता हूँ, माई रिमाइंडर इज व्हाट? 2.
लेट्स सी वेयर डज 2 इज। तो जो भी मेरे को इंडेक्स मिला, मेरे को इंडेक्स क्या मिल गया 2, तो मैं सेकेंड इंडेक्स पर जाके किसको स्टोर कर दूंगा 14 की वैल्यू को स्टोर कर दूंगा। सिमिलरली लेट्स से इफ आई वांट टू स्टोर 17, तो अगेन आई विल कॉल द हैश फंक्शन ओवर 17। मैं फिर से हैश फंक्शन को कॉल करूंगा, वैल्यू पास करूंगा 17, तो हैश फंक्शन मुझे क्या देगा 17 रिमाइंडर बाय 12। तो अगर मैं 17 को 12 से डिवाइड करूँ, माई रिमाइंडर विल बी 5। सो आई विल स्टोर द वैल्यू 17 एट द 5th इंडेक्स। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि ये की रिमाइंडर बाय टेबल साइज का लॉजिक क्या है, कि अगर मैं किसी भी नंबर को रिमाइंडर बाय कर दूँ टेबल साइज से, टेबल साइज क्या है मेरा 12, अगर मैं किसी भी नंबर x को अगर मैं रिमाइंडर करूँ 12 से, तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 से 11 की रेंज में ही आएगा। सीधी सी बात है, किसी भी नंबर को अगर तुम 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 से 11 तक ही होगा, 11 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। विच आर ऑल द वैलिड इंडेक्सेस दैट आई हैव, मेरे पास इतने ही वैलिड इंडेक्सेस है। अगर मेरा हैश फंक्शन मुझे लेट्स से वैल्यू देता है 14, तो 14 इंडेक्स तो मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एंड दैट्स वाई दिस इज अ वैलिड हैश फंक्शन। ओके, सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से यू वांट टू स्टोर सम वैल्यू 21 को अगर मुझे स्टोर करना है, तो अगेन आई विल पास दिस 21 इनटू माय हैश फंक्शन। हैश फंक्शन मुझे क्या देगा 21 रिमाइंडर बाय 12। तो अगर मैं 21 को 12 से डिवाइड करता हूँ, माई रिमाइंडर विल बी 9। तो 9th इंडेक्स पर मैं जाके किसको स्टोर कर लूँगा 21 को स्टोर कर लूँगा। सो दिस इज हाउ वी जनरली इंसर्ट एनी वैल्यू इनसाइड अ हैश मैप। जो भी वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी मैं उसको हैश फंक्शन में प्रोवाइड करूँगा, हैश फंक्शन मुझे इंडेक्स देगा और जो भी इंडेक्स मुझे मिला उस पर जाके वैल्यू को स्टोर कर लूँगा। सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज सर्चिंग एन एलिमेंट। नाउ सर्च फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड हैश मैप। अभी बताता हूँ क्यों। तो इंसर्ट अपन ने डिस्कस कर लिया, सेकेंड दैट विल डिस्कस इज सर्चिंग स्लैश सर्च फंक्शन। सर्च फंक्शन किस तरीके से काम करता है, लेट्स से यू वांट टू सर्च सम वैल्यूज और सर्च सम की, और सर्च फंक्शन मुझे क्या देगा ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा। इट विल रिटर्न, अगर की एग्जिस्ट कर रही होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो किसी भी की को एग्जिस्टिंग है या नहीं अगर चेक करना हो तो कैसे करोगे। अगर मान लो नॉर्मल एरे होती तो उस केस में तो अपन क्या करते, वी विल गो थ्रू ईच इंडेक्स 1 by 1 जब तक मुझे या तो की नहीं मिल जाती या फिर जब तक मेरी एरे खत्म नहीं हो जाती। तो उस केस में मेरी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, ऑर्डर ऑफ n रहती थी। नाउ लुक ऑन हेयर, यहाँ पर ये चीज़ कैसे काम करती है कि मान लो मुझे कोई की सर्च करनी है, लेट्स टेक, मुझे चेक करना है 14 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, या फिर 17 ले लो, चलो 17 मुझे चेक कर रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो जो भी चीज़ मुझे एग्जिस्ट जो भी की मुझे जिसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है उसको मैं फिर से कहाँ पास कर दूंगा, हैश फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा। तो मेरे को अगर 17 चेक करना है 17 एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो 17 को मैंने फिर से क्या किया हैश फंक्शन के अंदर पास, हैश ऑफ 17 मुझे क्या लेगा 17 रिमाइंडर बाय 12 विच इज़ 5। तो जो भी मेरे पास इंडेक्स आया है, जो भी मेरे पास इंडेक्स आया उस इंडेक्स पर जाके मैं चेक करूंगा वो की प्रेजेंट है या नहीं। तो 5th इंडेक्स पर मैं जाके चेक करूंगा, यस 17 इज प्रेजेंट, सो आई विल रिटर्न ट्रू। एक और एग्जांपल लेके देखो, लेट्स से मुझे चेक करना है 23 एज अ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है नहीं। अगेन आई विल कॉल माई सर्च फंक्शन। सर्च फंक्शन में क्या करूंगा, सेम 23 की हैश वैल्यू निकालूंगा। सो 23 की हैश वैल्यू क्या आएगी 23 रिमाइंडर बाय 12 विच विल बी 11। क्या है 11, जो भी इंडेक्स मेरे पास आया उस इंडेक्स पर जाके चेक करूंगा वो की प्रेजेंट है या नहीं। इंडेक्स 11 पर जाके देखा क्या मेरा 23 प्रेजेंट है, नहीं मेरा 23 प्रेजेंट नहीं है, देन इन दिस केस आई विल रिटर्न फॉल्स, द वैल्यू डज नॉट फाउंड। सो आई थिंक इट्स प्रीटी मच क्लियर। सो इंसर्ट फंक्शन क्लियर हो गया, सर्च फंक्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस अंडर हैश मैप इज डिलीट। डिलीट फंक्शन, डिलीटिंग अ की। तो डिलीट फंक्शन हैज प्रीटी मच सिमिलर लॉजिक ऑफ सर्चिंग, बिकॉज टू डिलीट एन element from your hash map you need to know where it is existing, right? तो सेम थिंग डिलीट करने के लिए फर्स्ट स्टेप तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट स्टेप तो इसका क्या करूँगा, सर्च करूँगा उसका इंडेक्स के लिए। आई विल सर्च फॉर द एलिमेंट, मैं एलिमेंट चेक करूँगा है या नहीं, अगर है तो जो भी उसका इंडेक्स मुझे मिलेगा उस इंडेक्स पर जाऊँगा और उस एलिमेंट को मैं किस पे 0 नन या नल पे सेट कर दूँगा। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर डिलीटिंग inside a hash map. So I think you understood why do we need hash map. यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ why do we need hash map. It is because of this search function. As I explained कि अगर मेरे को किसी की एग्जिस्टेंस का चेक करना है तो अगर नॉर्मल एरे होता तो मैं क्या करता, एक एक वैल्यू से गो थ्रू करता जब तक मुझे या तो की नहीं मिल जाती या फिर मेरा पूरा एरे कंप्लीट नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पर जब मुझे 17 की एग्जिस्टेंस को चेक करना तो मेरे को हैश फंक्शन में जैसे ही मैंने 17 पास किया तो उसने सीधा सीधा मुझे बता दिया कि ये वैल्यू तुम्हें 5th इंडेक्स पर अगर होगी तो मिल जाएगी, वरना यानी कि सिर्फ एक कंपैरिजन में मुझे पता चल गया कि वो की एग्जिस्ट कर रही है या नहीं।
सो ये चीज़ याद रखना, हैश मैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट इट प्रोवाइड्स इज कि इसमें सर्चिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1, यानी कि कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट टाइम। ये किस केस में होती है, एवरेज केस में, याद रखना एवरेज केस में। फर्दर ऑन वी विल डिस्कस इसके ड्रॉबैक्स वगैरह में, तो वर्स्ट केस में ये ऑर्डर ऑफ n पे भी जा सकती है, पर याद रखना कि एवरेज केस में ये ऑर्डर ऑफ 1 यानी कि सिर्फ एक कंपैरिजन में मुझे बता देता है कि कोई की एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। सो दिस मच ऑल फॉर द थ्योरेटिकल पोर्शंस ऑफ हैश मैप, इतना ही है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ हैश मैप। ओके, सो मूविंग टू द कोडिंग पार्ट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले अपने को क्या क्रिएट करना होगा, एक हैश टेबल क्रिएट करनी होगी। एज आई सेड हैश टेबल इज नथिंग एल्स बट यू कैन कंसिडर इट एज एन एरे। ओके, इंटीजर हैश टेबल, मैंने एक हैश टेबल बना दी, लेट्स टेक इट्स साइज एज 12। ओके फाइन, नाउ इंट मेन, एक और फंक्शन बना देते अपन, हैश फंक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, यूजर से क्या लेगा, कोई भी एक की लेगा और उसकी हैश वैल्यू या जो भी कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स होगा वो मुझे रिटर्न करके देगा। एक और इंटीजर वेरिएबल बना देता हूँ, टेबल साइज, और इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, 12। टेबल साइज की जगह मैं वेरिएबल का नाम सिर्फ साइज दे देता हूँ। हैश फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, इट विल सिंपली रिटर्न की रिमाइंडर बाय साइज। रिमेंबर, हैश फंक्शन का लॉजिक कुछ और भी हो सकता है, इट जस्ट नीड्स टू जनरेट आर्बिट्रेरी इंडेक्सेस, यानी कि रैंडम इंडेक्स जनरेट करना चाहिए, बस रैंडम एड्रेसेस जनरेट करना चाहिए। तो कुछ और लॉजिक भी आप हैश फंक्शन का चाहो तो लिख सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी दिस इज द ओनली लॉजिक, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट लॉजिक। इस लॉजिक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बट वी वोंट डिस्कस दैट हियर। ओके, सो अपन ने अपनी हैश टेबल बना दी, हैश फंक्शन बना दिया। नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू राइट डाउन द इंसर्ट फंक्शन। वी नीड टू राइट डाउन द इंसर्ट फंक्शन, जो बेसिकली क्या करेगा, जो भी यूज़र उसे की पास करेगा उसे इंसर्ट करने का काम करेगा। ओके, नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द इंसर्ट फंक्शन, लेट मी डिस्कस वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ हैश मैप, या एक और टॉपिक जो अपना डिस्कस करते हैं वो है द कंडीशन ऑफ कोलिजन। रिमेंबर दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोलिजन क्या होता है? सो मेरे को बहुत सारी वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, हर वैल्यू को इंसर्ट करने का सेम प्रोसीजर है, मैं उस वैल्यू को हैश फंक्शन में पास करूँगा, हैश फंक्शन मुझे इंडेक्स रिटर्न करके देगा। लेकिन यहाँ पर क्या सीन होता है, हर वैल्यू के लिए एक यूनिक इंडेक्स जनरेट हो, हर की के लिए एक यूनिक इंडेक्स जनरेट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी इसी हैश टेबल पे जाऊँ, यहाँ पर मैंने अभी तो क्या डाल रखा है, 14, 17, 21। ओके, लेट्स से आई वांट टू स्टोर अ वैल्यू कॉल्ड 38। मान लो मुझे 38 स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगा, 38 को हैश फंक्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 38 रिमाइंडर बाय 12। तो 38 रिमाइंडर बाय 12 विल बी ओनली 2। तो मैं सेकेंड इंडेक्स पर जाके अगर मैं 38 डाल देता हूँ तो सेकेंड इंडेक्स पर तो ऑलरेडी एक वैल्यू प्रेजेंट है, द वैल्यू 14 इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, तो मैं 13 से उसको ओवरराइट नहीं कर सकता। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द कंडीशन ऑफ कोलिजन। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, कोलिजन, which means that index or that address generated by my hash map in which a key is already existing or a key value pair is already existing। तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं, कोलिजन। ओके, कोलिजन हैंडलिंग के मल्टीपल वेज होते हैं, वी विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट वीडियो। राइट नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कोलिजन होता क्या है। ओके, कोलिजन हैंडलिंग अपन इस वीडियो में नहीं करेंगे। सो इंसर्ट फंक्शन पे वापस आते हैं। इनसाइड इंसर्ट फंक्शन, फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू, आई विल जनरेट द इंडेक्स, इंटीजर इंडेक्स इज इक्वल्स टू, मेरे को किस इंडेक्स पर इस की को डालना है, तो मैं क्या करूँगा, हैश फंक्शन को कॉल करूँगा और उसके अंदर की पास कर दूंगा। तो हैश फंक्शन मुझे मेरा इंडेक्स जनरेट करके दे देगा। अब इस इंडेक्स पर मुझे वैल्यू डालनी है या नहीं, ये मैं कैसे डिसाइड करूँगा, इफ
हैश टेबल, अगर उस हैश टेबल का इंडेक्स क्या है, एम्प्टी है। अब एम्प्टी को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो उसको ज़ीरो से अज्यूम कर सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट सारी वैल्यू क्या है, ज़ीरो, बट दैट वुडंट बी एन मोर अप्रोप्रिएट सिनेरियो, क्योंकि हो सकता है आपको ज़ीरो को भी एज अ वैल्यू स्टोर करना पड़े। तो इट्स बेटर कि अपन एक काम करते हैं, हैश टेबल के अंदर सारी वैल्यूज़ क्या करते हैं, मैनुअली ज़ीरो इंसर्ट, मैनुअली कोई वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। लेट्स से मैंने एक वैल्यू इंसर्ट कर दी 999, 4 टाइम्स 9, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, I think this is 12 line. You can use for loop to do the same, obviously. On okay, so we have generated a hash table. तो अपन ने empty indexes को generate करने के लिए default value क्या डाल दिया, -999. okay, you can use any garbage value actually. so मैं चेक करूँगा अगर हैश टेबल ने जो भी मेरा इंडेक्स जनरेट किया है अगर उसकी वैल्यू क्या है -999 है, विच मीन्स तो वो क्या है, इंडेक्स मेरा एम्प्टी है। अगर वो इंडेक्स एम्प्टी है तब तो मैं क्या करूँगा, हैश टेबल के जो भी मेरा कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स जनरेट हुआ है उस पर मैं जो भी यूज़र ने मुझे की पास करी थी वो मैं इंसर्ट कर दूंगा। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब क्या है, उसके उस इंडेक्स पर कोई और वैल्यू प्रेजेंट है हुज वैल्यू इज नॉट -999, विच मीन्स कोई और वैल्यू प्रेजेंट है, विच मीन्स इट इज़ द कंडीशन ऑफ कोल्यूजन, कंडीशन ऑफ कोल्यूजन। कोल्यूजन अपन नेक्स्ट वीडियो में टैकल कर लेंगे। राइट नाउ आई विल ओनली प्रिंट इंसर्शन नॉट सक्सेसफुल, ओके। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती तब तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, इंसर्शन इज सक्सेसफुल, ओके, दैट्स इट। सो आई थिंक इंसर्ट फंक्शन इज प्रीटी मच क्लियर कि मैं हैश फंक्शन से अपना इंडेक्स जनरेट कर रहा हूँ, हैश फंक्शन मुझे इंडेक्स ला के देगा, मैं उस इंडेक्स को चेक कर रहा हूँ एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो मैं की को इंसर्ट कर दे रहा हूँ, अदरवाइज एम्प्टी नहीं है तो कोलिजन अकर हो जाएगा। डन, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन टू द लॉजिक ऑफ सर्च फंक्शन। नेक्स्ट अपन को क्या करना है, सर्च फंक्शन लिखना है। सर्च फंक्शन इज बेसिकली व्हाट इट विल डू, इट विल टेल वेदर अ की इज प्रेजेंट और नॉट। अगर वो की प्रेजेंट होगी देन सर्च फंक्शन विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। सेम प्रोसीजर, जो भी की मुझे पास करी गई है मैं उसको हैश फंक्शन में पास कर दूंगा ताकि मुझे उसका क्या मिल जाए, इंडेक्स मिल जाए। जो भी इंडेक्स मुझे मिलेगा उस इंडेक्स पर जाके मैं चेक करूंगा वेदर दैट की इज प्रेजेंट और नॉट। इफ हैश टेबल ऑफ दैट इंडेक्स, जो भी इंडेक्स जनरेट हुआ अगर उस पर मेरी की प्रेजेंट है, विच मीन्स यस दिस की एग्जिस्ट इन माई हैश मैप एंड आई विल रिटर्न ट्रू। एल्स अपन क्या करेंगे, एल्स वी विल रिटर्न फॉल्स, दैट्स ऑल, okay. Now let's come inside the main function. I'll call the insert function quite a few number of times ताकि मैं सारी values insert कर सकूँ। We will take the same values जो अपने डेमो में ली थी, 14, 17 and 21, okay. And then later on we will also do search function. We will also do the search function, search for the value of let's say for 17, and then we will do the search function for the value of 23, okay. इंसर्ट फंक्शन पे चलते, जहाँ अपना इंसर्शन हो रहा है वहाँ पर ने प्रिंट कर दिया है, ओके। जहाँ पर भी मेरा हैश टेबल है वहाँ पर अगर मुझे वैल्यू फाउंड होती है तो लेट्स पुट अ प्रिंट स्टेटमेंट हियर, प्रिंट एफ की इज फाउंड, ओके। एंड एल्स में अपन क्या करेंगे, की इज नॉट फाउंड एंड वी विल रिटर्न 0, विच मीन्स वी विल रिटर्न फॉल्स, दैट्स इट, ओके। यहाँ पर स्लैश एंड डाल, ओके।
इंसर्शन पे चाहो तो आप वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हो कि कौन सी वैल्यू इंसर्ट हुई है और कौन सी नहीं. लेट्स डू समथिंग. We have compiled our code and see. So for all the 3 statements it has written insertion not successful. We have to figure out where it went wrong. 14, 17 and 21. I have generated the index. Okay, if it is equal, sorry थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी. अगर वो इक्वल है इसके, इसका मतलब तो क्या है, वो इंडेक्स मेरा एम्प्टी है. लेट्स ट्राई नाउ. और सर्च फंक्शन के अंदर भी यहाँ पर मुझे की प्रिंट करवानी है ना. ओके. So yeah, all the 3 insertions are successful. 17 as a key is found and 23 as a key is not found. अब एक केस और ले लेते हैं, कौन सा, कोलिजन वाला. लेट्स से इंसर्ट द वैल्यू ऑफ 38. अगर मैं 38 को एज अ वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, क्या बोलता है लास्ट में, इंसर्शन इज नॉट सक्सेसफुल. दैट्स ऑल. So this is all for the basic implementation of the hash map, and in the next video we are going to see how to handle the case of collision. यानी कि अगर आपका collision occur हो जाए तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है. That's all.